हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आज हम क्लास 7 के साइंस के पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो प्लीज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस channel. So let's get started. So here the chapter's name is nutrition in plants. In class 6 you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are components of food. These components are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food. जैसा तो हमें पता ही है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जीवित है उन्हें खाना चाहिए. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है, मगर ह्यूमंस नहीं. ह्यूमंस को खाना चाहिए, वो बनाते नहीं, खुद नहीं प्रोड्यूस नहीं करते. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसलिए तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस को हम कहते हैं कंज्यूमर्स. हियर बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो वो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के मदद से अपना फूड प्रिपेयर करता है. पहले वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और सनलाइट की मदद से, और सनलाइट भी लेते हैं. फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. ऐसे ही प्लांट्स का खाना बन जाता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and to provide the energy to carry out the life processes. Nutrition is mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophy. जैसे मैंने पहले कहा था कि प्लांट्स होता है ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफोस मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब खुद के लिए खाना बनाते हैं. Therefore plants are autotrophs. Animals are and most other organisms take in food prepared by plants, so they are called heterotrophs. Heteros मतलब अदर, मतलब एनिमल खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं खाना, वो खाना लेते हैं, खाते हैं, और किसी प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के से खाना लेते हैं. सो हियर Riley wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. इसलिए क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और फिर इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बना लेते हैं, मगर हम नहीं बना पाते क्योंकि हमें क्लोरोफिल नहीं है. इसलिए तो सब समझ गए. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of India of a plant or in certain plants. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transfer them to the food factories of plants? Photosynthesis. जैसे मैंने कहा था, leaves are the food factories of plants. Therefore, all raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves.
These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. लीव्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं और उस छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं हम स्टोमाटा. क्या कहते हैं? स्टोमाटा. सेल्स. सेल्स क्या होता है? You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. हमारे शरीर के सब चीज़ सेल्स से बनी है, छोटे छोटे, मतलब सेल ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है. सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. सेल्स इतनी छोटी होती है कि उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, हम खाली आंखों से नहीं देख सकते. Some organisms are made of only one cell. कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जैसे कि हम ह्यूमंस और दूसरे जानवर है, वो है मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सेल के चारों ओर थिन बाउंड्री लगा रहता है, उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ए न्यूक्लियस. सेल्स में न्यूक्लियस होता है, मिडिल में होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइटोप्लाज्म से मतलब सराउंडेड रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. देखिए, तो ये है सेल, ये है सेल. इस छोटे से दाग पर है न्यूक्लियस, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो बॉर्डरिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन. क्या? सेल मेम्ब्रेन. So now here, Bojo wants to know how water and mineral absorbed by roots reach the leaves. बोझो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल्स जो रूट्स, प्लांट्स के रूट्स से ले जाते हैं, वो पूरा लीव्स के ऊपर कैसे जाता है. दरअसल बात है कि प्लांट्स में जाइलम फाइबर्स होते हैं. क्या होता है? जाइलम फाइबर्स. वो ये काम करता है. क्या होता है? जाइलम फाइबर्स. ठीक है. So now here, water and minerals are transported through the pipes by vessels which run like pipes throughout the root, the stem and the branches of leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. जैसे मैंने कहा था, xylem vessels, xylem fibers, वैसा ही. You will learn more about this in chapter 11. So now here, Paheli wants to know why there is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. वही तो भैया, लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल. समझ लीजिए ये बात को. लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही ऐसी चीज़ है जो मतलब फूड बना सकता है. प्लांट्स के दूसरे जगह पर क्लोरोफिल नहीं रहता, इसलिए वो फूड नहीं बना पाते. मगर जैसे कि मान लीजिए, मतलब आप मान लीजिए कि प्लांट्स के जिस जगह पर ही ग्रीन पार्ट है, वहाँ पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उस जगह पर ही फोटोसिंथेसिस करा जा सकता है. मगर ज़्यादा परसेंटेज मतलब फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होते हैं सिर्फ. ठीक है. जैसा मैंने कहा, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. सनलाइट का जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल कैप्चर कर लेता है. दिस एनर्जी, और यही एनर्जी को वो काम लगाता है फूड प्रोडक्शन करने के लिए. एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सनलाइट की वजह से भी हो रहा है, तो ये इसे फोटोसिंथेसिस कहता है. फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब सनलाइट. जैसे
So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ये तो यूनिक है process. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Sun ultimate source of energy for all living organisms. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? नहीं, लाइफ ही नहीं हो सकता अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ही है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भैया? तो लाइफ ही नहीं होगा, लाइफ का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Besides, oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. During photosynthesis, chlorophyll contains cell of leaves. The presence of sunlight uses carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. This process is represented by carbon dioxide plus water, sunlight और क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड, सो इस रिएक्शन को हम लिखते हैं ऐसे, सिक्स CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से हुआ C6H12O6 प्लस 6O2। अब बेसिकली ये क्या है? ये कुछ नहीं, ग्लूकोज है। तो अब इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आप देख सकते हैं, अगर एक लीफ को हम माइक्रो, तो ऐसे दिखता है, ऐसे। दिख रहा है? इसे कहते हैं ये ग्रीन पार्ट, इसे कहते हैं कार्ड सेल्स, इसे कहते हैं स्टोमा, और जो ब्लैक पोर्शन है इसे कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टोमाटा, ये बीन शेप जैसे दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं गार्ड सेल्स, और ये है स्टोमाटल ओपनिंग, ठीक है। देख लिया? सो नाउ इस पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा है वही जो लाइट एनर्जी आ रहा है, क्लोरोफिल उसे कैप्चर कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले रहा है और वाटर दूध से ले रहा है, फिर ऑक्सीजन मतलब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन दे रहा है हमको, और ग्लूकोज जो है वो खुद का खाना है प्लांट्स का। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट्स द occurrence of a photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Here, Bozo has observed some plants with deep red, violet or brown. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. क्या आपको पता है इसका जवाब? हाँ, मैं बताता हूँ। ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। इन लीव्स जहाँ पर ग्रीन से ज़्यादा बहुत कलर दिखते हैं उसे हम कहते हैं वेरीगेटेड लीव्स। ग्रीन में हम क्लोरोफिल देखते हैं, मतलब एक पिगमेंट। क्लोरोफिल बेसिकली एक पिगमेंट, और दूसरे कलर्स में भी दूसरे पिगमेंट है। तो हम
नॉर्मल लीफ जो पूरा ग्रीन दिखता है वहाँ पर भी ये कलर प्रेजेंट है, मगर कम मात्रा में, इसलिए तो हमें ग्रीन दिखता है। ग्रीन का मात्रा ज़्यादा है और इस वेरीगेटेड लीव्स में इनका मात्रा भी कम, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम वो भी दिखते हैं। वहाँ पर ग्रीन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी फोटोसिंथेसिस कैरी करता है और ये कलर्स फोटोसिंथेसिस को भी हेल्प करता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन जब मैं पढ़ाऊँगा तो बाकी धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा। सो प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, subscribe and comment. If you have any doubt, ask me in the comment box or inbox. Ask me in the comment box. Okay, so bye. Have a nice day.